Class 6, Chapter 3. We have done addition, subtraction of whole number. Okay, and now in exercise 3D, we'll do multiplication of whole numbers. Okay, for that there are few rules. Okay, so first rule is closure. These are the properties of multiplication, that is closure property. That means if A and B are two numbers, their product will be C. These are two whole numbers and the product will be also a whole number. Okay, this is the closure property. Okay, I'll give you examples from the exercise. Okay, these are rules. I am explaining you first rules and then I'll give you the examples. Okay, first, then second is commutative. Commutative law, that is A into B is equals to B into A. Okay, means A and B are two whole numbers. When we multiply them, A into B will be equals to B into A, like 7 into 3 will be equals to 3 into 7. Okay, now third, that is multiplicative law or property, you can write property of 0. Means when we multiply a whole number by 0, the product will be 0. Okay, like if we multiply A by 0 or 0 by A, okay, the product will be always 0. Got it? Like 1 multiplied by 0 will be 0. 0 multiplied by 1 will be 0. Okay. Next is fourth, multiplicative property of 1. Now in place of 0 we are writing 1. Okay. So A multiplied by 1 or 1 multiplied by A, the answer will be A only. Like 7 multiplied by 1, 7 multiplied by 1 will be 7 and 1 multiplied by 7 will be also 7. मीन्स किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आता है, और 0 वाली प्रॉपर्टी में है किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्रोडक्ट क्या होता है, 0. ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव. फिफ्थ पॉइंट इज एसोसिएटिव. Associative law. In this, A into B into C is equals to A into B into C. पहले A और B एसोसिएटेड थे. ओके, अब B को सेपरेट करके इन्होंने B और C को एसोसिएट कर दिया, बट प्रोडक्ट विल बी सेम, लाइक 7 इंटू 3 इंटू 1. ओके, जो भी प्रोडक्ट होगा वो 7 इंटू 3 इंटू 1 उसके इक्वल ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Distributive law of multiplication over addition. That means A into B plus C. एडिशन है यहाँ पे. ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A इंटू बी प्लस A इंटू सी. क्यों लिखा हमने इसको ऐसे? बिकॉज A जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब A जो है B से भी हो रहा है और A C से भी हो रहा है. ऐसे
Okay, so we can write it as a into b plus b a into c. Okay, next, seventh, distributive law of multiplication over subtraction. अब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बाकी रूल सेम है, ठीक है. नाउ इट विल बी a into b minus c, that is equals to a into b minus a into c. बस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है. a into b and a into c. Okay, now question number 1 of your book. Fill in the blanks. We have to use the properties which we have just done. Okay, जैसे हमने किया था, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ किए थे. क्लोजर प्रॉपर्टी किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों किया था, ठीक है. तो उनमें से आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टियाँ लग रही है, ठीक है. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 246 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 आ गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, तो उसमें क्या होता था, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर वापस आएगा. तो यहाँ क्या आना चाहिए वापस? 246 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 246. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. 1369 मल्टीप्लाइड बाय 0. तो अब ये प्रॉपर्टी हो गई ज़ीरो वाली, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. तो किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ज़ीरो. सो द आंसर विल बी ज़ीरो. ओके, नेक्स्ट 593 मल्टीप्लाइड बाय 188 इज इक्वल्स टू 188 मल्टीप्लाइड बाय, क्या आना चाहिए यहाँ पे? ये हो गया, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. सो अगेन हेयर विल बी 593. ओके, नेक्स्ट 286 मल्टीप्लाइड बाय 753 इज इक्वल्स टू डैश इंटू 286. तो क्या मिसिंग है यहाँ? 753. ओके, so here we will write 753. Next is 38 multiplied by 91 into 37 is equals to dash into 38 multiplied by 37. ये हो गया associative property. तो 38 and 37 is there. What is missing? 91 is missing. So you will write here 91. Okay. So I have done few parts of the question number 1 and remaining you will do in book. You have to do question number 1, 2 in book. Okay. Question number 1 and 2 only in book. Now question number 2 is state the property. अब आपको इसमें बताना कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है. ये नहीं बताना है कि क्या इसका आंसर है, जस्ट यू हैव टू टेल विच प्रॉपर्टी इज देयर. सो इन फर्स्ट पार्ट एज यू कैन सी 19 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19. सो ये है a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए. कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? ये हो गई कम्यूटेटिव लॉ. ओके, सो यू विल राइट कम्यूटेटिव लॉ. ओके, नेक्स्ट 16 इंटू 32. सो दिस a इंटू बी हो गया, ये a इंटू बी, यानी कि ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है सीधा. ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, a इंटू बी. नेक्स्ट इज 29 इंटू 36 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 29 इंटू 36, ब्रैकेट में है 36 इंटू 80. तो पहले ये 29 36 के साथ एसोसिएट था, अब 36 जो है वो 18 के साथ एसोसिएट हो गया. तो ये कौन सी लॉ हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट ऑल द लॉज, ठीक है. नेक्स्ट इज 1480 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो ये 1 वाला हो गया. कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ 1. क्या लिखेंगे यहाँ? मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ 1. ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 and 2 करने हैं आपकी बुक में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच. इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़. जो प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई हैं उनमें से ही करना है. तो 647 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 647 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो अब देखो इसमें a इंटू बी इज इक्वल्स टू, इसमें क्या किया है देखो, प्लस आ रहा है तो प्लस या माइनस आता है तो कौन सा लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन अगर प्लस है तो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर यहाँ माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी. ओके, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओवर एडिशन. सो a क्या है 647. ओके, 647 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में हो जाएगा 13, b की जगह क्या होगा 13 एंड c की जगह क्या होगा, इन प्लेस ऑफ c वी विल राइट 7. ओके, 13 प्लस 7 विल बी 20. ओके, 647 मल्टीप्लाइड बाय 20. ओके, नाउ इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप सीधा सा, 0 एज इट इज लिखेंगे, 7 टू ज़ 14, 4 1 कैरी, 4 टू ज़ 8 प्लस 1 9 एंड 6 टू ज़ 12. सो द आंसर विल बी 12,940. ओके, मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. इसमें आपको क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई हैं उनमें से यूज़ करनी है प्रॉपर्टीज़. ओके, नेक्स्ट इज 569 मल्टीप्लाइड बाय 17, 569 मल्टीप्लाइड बाय 13, 569 मल्टीप्लाइड बाय 70. तो अब इसमें 569 कॉमन आ रहा है तो उसको आप पहले ले लीजिए कॉमन, 569. ओके, अब इसमें रूल कौन सा लग सकता है, अगेन एडिशन वाला लगेगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो अब इसमें जो रह गए रिमेनिंग 17, 13 एंड 70, इनको लिखेंगे 17 प्लस 13 प्लस 70. ओके, अब इनको ऐड कर दीजिए, 17 प्लस 13 प्लस 70 दैट इज़ 100. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 569. अब 100 से मल्टीप्लिकेशन कितना ईजी है, ओनली 2 zeros लगाने हैं इस नंबर के पीछे. 569 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी दिस 56,900. Okay, now question number 4 is determine each of the following product by using suitable rearrangement. Means you have to arrange them in such a way that the multiplication should be easy, उसको और easy हो जाए. ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 के मल्टीपल्स आ जाएं. ठीक है, जैसे अगर हम 2 and 50 को अरेंज करते हैं तो 50 टू ज़ा 100 हो गया, 10 का मल्टीपल हो गया. अब इसको आप 1658 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 50, सो दैट विल बी 100 इंटू 1658. अब 10, 100, 1000, 10,000 इनका मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है बिकॉज जो नंबर है उसके पीछे बस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें लगाने हैं. ठीक है, सो इसलिए हम इनको क्या करते हैं 10 के मल्टीपल्स में चेंज कर देते हैं. ओके, ऐसे आपको रीअरेंज करना है नंबर्स को. देखो एक और क्वेश्चन बता दी मैं, 625 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 8 इंटू 50. तो अब आप देखेंगे किसको हम मल्टीप्लाई करें कि बेटर हमको मिले. ठीक है, अगर हम इन दोनों को करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, यानी कि ये जो है हमको 10 के मल्टीपल्स नहीं दे रहा है तो इनको नहीं करेंगे. फिर हम 8 से करके देखते हैं इसको. ओके, एंड 20 इंटू 50 करते हैं. 20 इंटू 50 तो 5 टू ज़ा 10, यानी 10 का मल्टीपल मिल रहा है हमें ना. सो 625 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 50. हमने इनको अरेंज कर लिया. तो 20 इंटू 50 ये तो हो जाएगा आपका 1000 इंटू 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 टू ज़ा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, 8 6 ज़ा 48 प्लस 2 50. ओके,
हो गया ना, 0 ज़ीरोज़ आ गए। अब आप इनको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 ज़ीरोज़ ऑलरेडी है 5000 के साथ में, और 3 ज़ीरोज़ 1000 वाले, ओके, इट इज़ 50 लाख। ऐसे आपको रीअरेंज करना है, यानी उनकी प्लेसेस चेंज करके उनको ऐसे नंबर्स के पास लाना है ताकि 10 के मल्टीपल्स मिल जाए आपको। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है, यानी इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, इनमें से आप कोई लॉ यूज़ कर सकते हैं। जैसे 740 है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 105, तो 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5, तो ये एडिशन वाला रूल हो गया। और नेक्स्ट है 947 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला रूल। ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, 740 multiplied by 105 can be written as 100 + 5. Okay, so this is the rule, that is A multiplied by B plus C, that is equals to A into B plus A into C, where A is 740, B is 100 and C is 5. Okay, तो अब आप इसको लिखेंगे 740 multiplied by 100 plus 740 multiplied by 5. Okay, तो 740 multiplied by 100 will be 2 zeros ऐड करने इसमें आपको, बट हेयर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। 5 zeros are 0, 4 5s are 20, 2 carry, 7 5s are 35, 35 plus 2 37. Okay, and now just add them, 0 0, 0 plus 7 will be 7, 3 plus 4 will be 7 and 7. Okay, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, सो 947 मल्टीप्लाइड बाय 100 - 4। ओके, सो ये हो जाएगा A इंटू B माइनस C, दैट इज इक्वल्स टू A इंटू B माइनस A इंटू C, वेयर A इज़ 947। सो 947 को पहले आप मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, फिर आप करेंगे 947 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 947 जब 100 से मल्टीप्लाई करें 2 zeros हो गए यहाँ, माइनस 4 7 28, 2 कैरी, 4 4 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 9 4 36 प्लस 1 37। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। 10 - 8 2, 9 - 8 1, सो अब यहाँ 6 है, 16 - 7 9, अब यहाँ 3 है, 3 - 3 0 and 9, 9 0 9 1। ओके, 9 0 9 1 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3576 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, 3576 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो यू कैन राइट 3576 मल्टीप्लाइड बाय 10 - 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, सो इट विल बी 3576 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 3576 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, सो 3576, 10 का 0 आ जाएगा इधर, और 3576 एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 6 4, 5 - 7 नहीं हो सकता, तो 15 - 7 8, देन 6 - 5 1 एंड 5 - 3 2 एंड 3। ओके, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, जो क्वेश्चन आप सिंपल मल्टीप्लाई करते थे वही करना है आपको इसमें। ठीक है, जैसा आप प्रीवियस क्लासेस में करते आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट number, so largest number can be made by repeating 9,
सो 999. ओके, फिर है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, दैट इज़ 5 टाइम्स 9. ओके, 5 टाइम्स 9 लिखना है, 9 9 9 9 एंड 9, 5 टाइम्स 9. ओके, इनका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना. तो क्या करेंगे हम पहले, 9 9 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 9 9 9. ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 10 100 1000 10,000, तो ये 99,000 है. इसको हम 1 लाख माइनस 1 लिख सकते हैं. ओके, सो 999 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख माइनस 1. ओके, अगेन ये क्या प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन हो गया. तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 1 से हो जाएगा. ठीक है, सो 999 यू कैन राइट 5 zeros आफ्टर इट, 1 2 3 4 5, माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा दैट इट विल बी 999 ओनली. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दैट. अब सब्ट्रैक्शन ईजी है. 10 minus 9 will be 1. Okay, 9 minus 9 will be 0. 9 minus 9 will be 0. Okay, then 9 9, then 8 because it has given 1, 8 and 9 9. This is the answer. Okay.